Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, as you all know, we were discussing our chapter 2 polynomials. Okay, so in last lecture what I did? I did provide solutions to you for exercise 2.3. And actually I provided solution to only selected problems, not each and every problem. And I hope you can solve the remaining question. If still you have doubts, what you can do, you can ask me. I will sort that out. Okay. So now this totally completes your chapter 2 and it's an important chapter. Okay. So what you have to do, you have to practice a lot more problems because it will be helpful for you in your exam. And the book I can refer is R.D. Sharma. It's a very good book. There are numerous problems on that and you can solve as many problems as you want. And in that case, if there are any doubts in that questions also, you can ask me. I will sort it out also. Now, what we will do? We will start new chapter. That is chapter 3, pair of linear equations in two variables. It's a bit lengthy chapter because there are many methods like substitution method, elimination method, cross multiplication method. So we will discuss each method one by one, and then there will be word problems, both streams problem. So it's a bit lengthy chapter, but the weightage of this chapter is very good. So you have to understand this chapter very carefully. It will be very helpful in your board exams actually. Okay. So I hope you will understand this chapter well also, like you did in polynomials. So stay safe, stay indoors. Thank you. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. Okay, as you all know that we have completed our chapter number 2 of polynomials. ठीक है? Now we will move on to chapter number 3, that is pair of linear equations in two variables. ठीक है? अब हम chapter number 3 start करेंगे. तो first we will see some introduction. ठीक है? Let us take two equations, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 or a2x plus b2y plus c2 equal to, these are two equations. ठीक है, we can write them as also a1x plus b1y equal to c1. Similarly a2x plus b2y equal to c2. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. These are the two equations. अब बात करते हैं इन दो इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाई टू वेरिएबल्स. ठीक है, टू वेरिएबल्स क्या है बेटा? यहाँ पे वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई. देन कम्स लीनियर. व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर बेटा? बिकॉज the degree of variable is 1. We know that if degree is 1, then it is called as linear equation. So if you see here, the power of x is 1 and y is 1. Here also x ki power 1, y ki power 1. So that's why it is called linear equation. So degree 1. And why it is called equation? इक्वेशन क्यों बोला इसे बेटा? बिकॉज इट इंक्लूड्स इक्वल टू साइन. ठीक है ना, इसलिए इसको इक्वेशन बोला. अगर आपके पास इक्वल टू साइन नहीं है, देन इट वोंट बी एन इक्वेशन. देन वी विल कॉल इट एज अ एक्सप्रेशन. सपोज if it is written as a1x plus b1y plus c1, if it is written as like this, then it will be an expression. We can't call it equation. ठीक है, because there is no equal to sign. ठीक है, and a1 a2 b1 b2 they all are coefficients of x and y, and c1 c2 are constants. Now we have to see only the term pair. First of all, let me tell you an example of linear equation in one variable. 2x plus 3 equal to 5. It is in our first equation, only equation. ठीक है, it is a linear equation because degree is 1 and variable is only x. So linear equation one variable. Okay, can we solve it?
ओके 2x इक्वल टू 5, 3 इधर जाएगा नेगेटिव, 2x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/2 and x इक्वल टू 1. ओके, इफ वी हैव लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देन ओनली वन इक्वेशन इज सफिशिएंट टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो देन ओनली वन इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन. बट हियर वी हैव टू वेरिएबल्स x and y, x and y. So if we have equation in two variable then definitely we need two equations to find its solution. So that's why they exist in pair. ठीक है, इसलिए ये पेयर में एग्जिस्ट करती है. they exist together because we can't find our solution with the help of one equation if it is in two variables. ठीक है, now we can write an example of pair of linear equation in two variables. 2x plus 3y equal to 12. This is first, and 4x plus 5y equal to 15. These are pair of linear equations in two variables. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, सब समझ में आएगा आपको. ठीक है ना? ओके, ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है आपका. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अच्छा, अब एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5. ठीक है, अब क्या करते हैं अपन बेटा? सब्स्टिट्यूट करते हैं. पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1. ठीक है, इन LHS. LHS क्या है आपका? ये LHS है और दिस इज योर RHS राइट साइड. ठीक है, अब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं. तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3, दिस विल बी इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू RHS. ओके, इट मीन्स 1 when we put x equal to 1 and y equal to 1 then we will get LHS equal to RHS. Means 1,1 point satisfies this. Now take put x equal to 1 y equal to 7, then 2 into 1 plus 3 into 7, this will equal to 2 plus 21, this will be 23. But this is not equal to RHS because our RHS is 5, but here it is, so it is not equal to RHS. So what does this is point 1,7. What does it mean? 1,1 satisfies this equation but 1,1 doesn't satisfy it. तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है बेटा, it means that point 1,1 lies on the line representing equation 2x plus 3y equal to 5. देखो बेटा, सपोज 2x plus 3y को रिप्रेजेंट करने वाली कोई ये लाइन है. अब 1,1 इसको सेटिस्फाई किया बट 1,7 इसने सेटिस्फाई नहीं किया. इसका मतलब 1,1 पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा और 1,7 पॉइंट, जैसे 1,7 पॉइंट यहाँ पे है, ये इस लाइन पे लाई नहीं करेगा. बट 1,1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब 1,1 इस लाइन पे लाई करेगा. मीन्स 1,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन एंड इट लाइज ऑन दिस लाइन. ठीक है, 1,7 never lies on the line because it is not a solution. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं वो सब 2x plus 3y equal to 5 के सॉल्यूशन है. ठीक है, समझ में आया? ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन आर इट्स सॉल्यूशन. ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, मेथड्स ऑफ
solving pair of linear equations। बट हम 4 मेथड पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम, ठीक है। फर्स्ट वन इज graphical method, second one is substitution method, third one is elimination method, and final one is cross multiplication मेथड। ठीक है बेटा, ये 4 मेथड है जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। थ्रू ऑल दीज सॉल्यूशन मेथड्स वी कैन गेट आवर आंसर, बट आई विल सजेस्ट एलिमिनेशन मेथड। व्हाई एलिमिनेशन मेथड आई विल सजेस्ट? बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्विकेस्ट एंड चांसेस ऑफ एरर आर लेस। चांसेस ऑफ मिस्टेक जो होंगे ना वो क्या होंगे? लेस होगा बेटा, ठीक है ना। चांसेस ऑफ मिस्टेक क्या होंगे? लेस होंगे, और ये क्विकेस्ट भी है, ठीक है। इसलिए एलिमिनेशन मेथड जनरली हम प्रीफर करते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। इन एग्जामिनेशन ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, यू कैन यूज एनी मेथड, द मेन आइडिया इज टू गेट द आंसर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं, कोई सा भी मेथड जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया एलिमिनेशन मेथड तो भैया बस एलिमिनेशन ही करना है ना, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ करिए, जस्ट आई सजेस्टेड, ठीक है ना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है बेटा। तो अब हमारा आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, अच्छा तो ग्राफिकल मेथड पहले कुछ बात कर लेते हैं, जनरल बात कर लेते हैं। सपोज 2 लाइन्स आर गिवन, 2 लाइन्स आर गिवन, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट, या तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मीन्स ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर। एंड फाइनल वन इज पैरेलल। 3 ही केस हो सकते हैं ना भैया, इसके अलावा अगर तुम्हें कोई आता है तो बता दो। एज फार एज आई नो देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे ये हमारी कोई एक लाइन है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये हमारी सेकंड लाइन है। तो बेटा आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस में ये पॉइंट कॉमन आ रहा है। ये पॉइंट जो है इस लाइन में भी आ रहा है, और ये पॉइंट जो है ये दिस इज आवर लाइन 1, दिस इज आवर लाइन 2, तो ये पॉइंट लाइन 2 में भी आ रहा है। तो दिस इज आवर कॉमन पॉइंट, इट मीन्स this is the point which is lying on both the lines, so that's why it is the solution of equations, solution of both equation। जो दोनों इक्वेशन है ना उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि पॉइंट दोनों सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है दोनों लाइंस का? बिकॉज इट इज लाइंग ऑन बोथ द लाइंस, ठीक है। और ऐसे कितने पॉइंट, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती तो कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगी वो? They will intersect at only one point. Therefore, it is called as unique solution. कुछ समझ में आ रहा है बेटा? 2 lines can intersect at only one point. Therefore, the solution is only one. That's why it is called unique solution. This is for case 1 where they intersect. Now we will see for coincident. This is our x-axis. This is our y-axis.
सपोज दिस इज योर लाइन 1 एंड दिस इज योर लाइन 2। अब आप देख सकते हैं दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, जहाँ पहली लाइन है वहीं पे ही दूसरी लाइन है। इसका मतलब जैसे अगर हम कोई ये पॉइंट लें तो ये पॉइंट लाइन 1 पे भी लाइक कर रहा है और ये पॉइंट लाइन 2 पे भी लाइक कर रहा है, ये पॉइंट लाइन 1 पे भी लाइक कर रहा है, लाइन 2 पे भी लाइक कर रहा है। इसको लें तो ये दोनों पे लाइक कर रहा है, इसको लें ये दोनों पे लाइक कर रहा है, दोनों पे लाइक कर रहा है। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस हो गए इसके बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे इसके बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। When lines are coincident, there will be infinitely many solution. अब थर्ड देखते हैं पैरेलल के लिए। This is your line 1 and this is your line 2। बेटा ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या आपस में? नहीं, बता दो अगर आपको दिख रहा है तो। They are not intersecting at any point, or we can say that there is no common point. So therefore we will say there is no solution when lines are parallel। ठीक है, साथ के साथ हम ये भी देख लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट बेटा वो होता है जहाँ पर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट वो होता है जहाँ पर नो सॉल्यूशन होता है। क्या बोला मैंने? कंसिस्टेंट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। हियर इन केस 1 when they are intersecting there is only one solution। Okay, it means this is consistent। Here also there are infinitely many solutions, means at least one solution is there na, so therefore they both are consistent। ठीक है, consistent means at least one solution। and in case third there are no common solution, there is no solution, it means it is inconsistent। inconsistent means no solution। ठीक है, दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ टू लाइन। ठीक है, अब नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। ठीक है, वी विल सी सम एग्जांपल्स एंड वी विल डिसाइड whether lines are intersecting, parallel or overlapping। ठीक है, now we will take question number 1। it says that 2x minus y equal to 4, x plus y equal to minus 1। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं हम? अब हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं बेटा? 2। ओनली 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, तो ठीक है, पहली लाइन क्या है आपकी? 2x minus y equal to 4, दिस इज योर इक्वेशन 1। and second equation is x plus y equal to minus 1, this is your second equation। now x y, simply you can find when you put x equal to 0 then y equal to minus 4, x equal to 0 put करो तो this will become 0, minus y equal to 4, or we can say that y equal to minus 4। तो x equal to 0 पे y equal to minus 4। अब y equal to 0 पुट कर दो तो 2x equal to 4, इट मीन्स x equal to 4/2 मीन्स 2। तो देन y equal to 0, x equal to, तो जनरली हम दो पॉइंट तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एक बार x को 0 के इक्वल कर दो, एक बार y के इक्वल टू 0 कर दो। बट अगर ऐसा करने से, ऐसा तभी करना है जब पॉइंट, जो पॉइंट आए ना वो ऐसा है कि उसको हम लोकेट कर सकते हैं। जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू -4 आ गया, so we can easily locate -4। also when we put y equal to 0 we get x equal to 2, तो 2 को भी हम इजीली लोकेट कर सकते हैं। बट अगर x equal to 0 को पुट करने से सपोज y की वैल्यू 4/3 आती है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको x equal to 0 और y equal to 4/3 लेना है, नहीं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, सो यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम। तो आपको सुटेबली चूज करना है कि क्या लेना है। अब देखो इसमें भी ले लो आप x y, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा -1, और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा -1। तो ये दोनों हम पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए हमने x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करके देख लिया।
ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। अच्छा, इस पे पॉइंट्स क्या क्या हैं बेटा आपके, 0,-4, 0, आपके पॉइंट्स क्या हैं, 0,-4, x0 y-4, 0,-4, दिस इज योर पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 2,0, x = 2, y = 0, सो दिस इज योर पॉइंट। इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक लाइन बन गई। अब सेकंड के लिए क्या आ रहा है पॉइंट, 0,-1 एंड -1,0, 0,-1, दिस इज 0,-1 एंड -1,0, -1,0, ये पॉइंट आया। अब इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है बेटा, ठीक है। तो आपने इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 2x - y = 4 को, ये रिप्रेजेंट कर रही है 2x - y = 4, ठीक है। और ये जो सेकंड वाली है, ये रिप्रेजेंट कर रही है x + y = -1 को। तो यहाँ पे लिख देते हैं x + y = -1। अब अच्छा बेटा, अब आपको देखना है ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए, आप देखेंगे तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज x = 1 एंड y = -2। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 1, -2 इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 1, -2। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1, -2 पॉइंट P इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। अच्छा बेटा, मैं आपको भी एक बार ये भी बता देता हूँ कि सॉल्यूशन क्यों है। सॉल्यूशन है 1, -2, इट मीन्स x = 1 और y = -2. It means this point will satisfy both the equations. This is equation 1 and this is your equation 2. It should satisfy these equations. तो हम equation लेते हैं। पहली क्या है, 2x - y है ना, = 4। तो हम लेते हैं 2x - y, 2x - y। इसमें x = 1 है, पुट करते हैं, और y = -2 है ना। x = 1 और y = -2, तो इट विल बी 2 + 2, इट विल बी 4। दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो इसको सेटिस्फाई किया। अब ये लेते हैं x + y = -1 है सेकेंड इक्वेशन। LHS क्या है, x + y, तो x की जगह 1 प्लस y की जगह -2, तो ये होगा 1 - 2, तो ये आएगा -1। और RHS भी कितना है बेटा, -1 इक्वल टू RHS। तो इट मीन्स वी कैन से दैट 1, -2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। और ये जो सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये हो गया आपका। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल कि ये क्या कहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्वेश्चन 2। इट सेज दैट 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12।
ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, दूसरी है 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, x y। x y अच्छा, अब x की वैल्यू क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो ये हो जाएगा 0। तो 4y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10/4 और वी कैन से 5/2। 5/2 मीन्स 2.5। या तो हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, या फिर ऐसा करिए आप x की वैल्यू 1 पुट करिए। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा 2, ये उधर जाके 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, तो 4y इक्वल टू 8, तो y कितना हो जाएगा 8/4, दैट मीन्स 2। तो व्हेन वी पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। और y इक्वल टू 0 पुट करिए तो x इक्वल ये 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/2 मीन्स 5। समझ में आ रहा है? इसमें ये इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो 6y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/6, इट मीन्स 2। अब y को 0 पुट करिए, y को 0 पुट करेंगे तो ये 0, तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/3 मीन्स 4। अब इसको हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये रही आपकी इक्वेशंस और ये रहा आपका ग्राफ। तो बेटा पॉइंट्स क्या हैं, 1,2 और 5,0, 1,2 5,0। अच्छा, 1,2, दिस इज योर पॉइंट 1,2 और 5,0, दिस इज 5,0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है बेटा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 को, तो इसमें लिख देते हैं हम 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली अब अदर पॉइंट्स क्या हैं, 0,2 और 4,0। अच्छा, 0,2, तो 0,2 कितना होगा बेटा, x0 y2, और 4,0, तो ये हो जाएगा आपका 4,0। तो ये तो है आपका 4,0, ये है आपका 0,2, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ज्वाइन करते हैं भैया। ये हमने डाला, तो ये लाइन किस कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करी, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। अच्छा बेटा, आप इन दोनों लाइंस को देखिए तो आपको नज़र क्या आ रहा है, क्या ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी? देखिए इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है ऑलवेज सेम है, इट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस। ये क्या है, पैरेलल लाइंस। तो क्या कोई कॉमन पॉइंट होगा इनके बीच में, इट इम्प्लाइज नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लाइन्स हैव नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। हैंस गिवन सिस्टम ऑफ equations, hence given system of equations has no solution। solution क्यों नहीं है, क्योंकि they are parallel, therefore no common point is there। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल 3। अच्छा,
एग्जाम्पल 3, ये क्या कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अच्छा, ये x ये y, ये है पहला 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 के लिए। इस सेकंड वाला ब्लॉक जो बन रहा है दैट इज फॉर 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, x एंड y। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 9, 9/3 इज 3, तो y इक्वल टू 3 आ गया। अच्छा, अब y इक्वल टू 1 पुट करिए, y इक्वल टू या फिर y इक्वल टू कितना 1, तो ये 3 इंटू 1 इज 3, 9 माइनस 3 इज 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। जब y इक्वल टू 1 आया तो x इक्वल टू कितना आया 3। सिमिलरली यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3, और जब y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट सेम आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, चलो उसको भी देख लेते हैं। अब जब आप पहले पॉइंट को ड्रॉ करने बैठे तो पहला पॉइंट इज 0,3, 0,3, सपोज दिस इज 0,3। सेकेंड पॉइंट इज 3,1, दिस इज 3,1। ज्वाइन किया आपने बेटा, तो ये लाइन कुछ ऐसी, मैं रफ फ्लोट बना रहा हूँ तो ये। अब सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए भी जब आप ड्रॉ करने जाएंगे तो यही तो पॉइंट होंगे, तो इट मीन्स दूसरी लाइन भी यही होगी। इट मीन्स दे आर ओवरलैपिंग, इट मीन्स कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। बेटा कोइंसिडेंट लाइन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, मैंने बताया था ये पॉइंट जो है दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, सिमिलरली ये पॉइंट भी दोनों पे, सिमिलरली ये पॉइंट भी दोनों पे, ये भी दोनों पे। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। समझ में आया बेटा। तो लास्ट में क्या लिखोगे, सिंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट therefore there are infinitely many solution। समझ में आया बेटा। तो हमने 3 एग्जाम्पल में देखा, पहला एग्जाम्पल देखा था हमने इंटरसेक्टिंग का, सेकेंड एग्जाम्पल देखा था पैरेलल का, थर्ड पॉइंट देखा हमने कोइंसिडेंट का। तो तीनों एग्जाम्पल की सारी वैरायटीज हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। अभी तक तो हमने देखा था सॉल्व करके पता लगाया कि ये इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। नाउ वी कैन डायरेक्टली आल्सो टेल वेदर लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट बाय जस्ट लुकिंग एट कोफिशिएंट, ठीक है। सिंपली कोफिशिएंट को देख के हम बता सकते हैं कि वेदर लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो आप दो लाइंस लीजिए आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। a1 a2 b1 b2 आर कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y एंड c1 एंड c2 आर कांस्टेंट, ठीक है। इसके लिए हम टेबल बना रहे हैं बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके लिए एक टेबल बनेगी इसमें, ठीक है। पहले तो है कंडीशन, क्या कंडीशन है, देन वी विल सी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, then comes nature of solution, and finally types of lines, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वन हम देखते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए,
2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। बेटा a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 2। क्या ये दोनों 2/3 इज नॉट इक्वल टू, कोफिशिएंट को कंपेयर करके बोला है कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो डायरेक्टली बाय लुकिंग एट कोफिशिएंट्स रेशियो वी कैन से दैट देयरफॉर द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन। अगर तो यूनिक सॉल्यूशन है मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब अगर सॉल्यूशन है तो क्या होता है नेचर, कंसिस्टेंट। और टाइप ऑफ लाइंस क्या होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग। लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। अब सेकंड पे बात आती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। तो देखो 2/4 है, इसका रेशियो, इसका रेशियो है 3/6 और इसका रेशियो है 5/10। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब तीनों रेशियो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मीन्स एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो है, तो देयरफॉर इट विल बी कंसिस्टेंट। तो लाइंस क्या होंगी बेटा, कोइंसिडेंट। ठीक है। अब थर्ड वाला आता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 2x प्लस 5y इक्वल टू 8, 4x प्लस 10y इक्वल टू 12। तो इनका रेशियो देखिए 2/4, इसका है 5/10, इसका है 8/12। तो जाएगा 1/2, इसका भी कैंसिल आउट हो गया 1/2, ये जाएगा 2/3। तो a1/a2 तो इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा है तो देयरफॉर दे विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। और लाइंस क्या होंगी बेटा, सॉल्यूशन नहीं है तो पैरेलल। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, जैसे आपको 3 एग्जांपल्स कराए ना बेटा, उन तीनों एग्जांपल्स में देखेंगे आप रेशियोज कंपेयर करना, देन यू विल फाइंड दैट वेदर व्हाट वी डिड, वेदर दिस टेबल इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तीनों एग्जांपल्स को इस टेबल से कंपेयर करके बताना डायरेक्टली जस्ट बाय लुकिंग एट कोफिशिएंट्स वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर ऑन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, थैंक यू।